بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق ان طاقتور اقوام کی تباہی کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ظلم و کفر کیا، جبکہ قرآن میں کئی مقامات پر چند ظالم اقوام اور طاقتور افراد کا بھی ذکر کیا ہے جن کی قوت چکنا چور ہو گئی اور وہ خود دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت سے انکار کیا۔ ایسی ہی ایک قوم تھی قوم سمود، جس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ہم مختلف حوالہ جات کی مدد سے قوم سمود کے بارے میں تفصیلات پیش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا۔ سمود ایک عرب قوم کا نام ہے جو حضرت صالح پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن میں ان کو ایک مشرک قوم کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ پتھروں سے گھر بنانا ان کی صفات میں شمار کیا جاتا ہے۔ خدا نے حضرت صالح کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے معجزے کو، جو کہ ایک اونٹنی تھی اور ناقہ صالح کے نام سے مشہور تھی، مار ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ قوم سمود کی کہانی توریت میں نہیں ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ کو ملنے والی چیزوں سے سعودی عرب کے شمالی حصے میں ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا تھا۔ سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گناہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا تھا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ قوم سمود کا دارالحکومت یہی شہر تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ سمود زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے صالح نبی کا انتخاب کیا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں۔ قبیلے نے یہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ صالح محض ایک بشر ہے، اور اس نے خدا سے نشانی کا مطالبہ کیا۔ خدا نے اپنی نشانی کے طور پر ایک دودھ والا اونٹ اتارا اور صالح نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچائیں اور اسے اپنے کنویں سے پینے دیں، لیکن سمود نے اس کی انگلی کاٹ دی یا دوسری صورت میں اسے زخمی کر دیا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ کر دیا سوائے صالح اور چند دوسرے نیک آدمیوں کے۔ سمود کی تباہی کے خدا کے ذرائع میں گرج چمک، طوفان، چیخ و پکار اور زلزلہ شامل ہے۔ بعض علماء کے مطابق چیخ، جو ایک انتہائی تیز آواز ہے، زلزلے کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن میں پتھروں اور پہاڑوں کو کھود کر گھر بنانا اور ریگستانوں میں عمارتوں کی تعمیر کو قوم سمود کی خصوصیات کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح ان کے زرخیز اور آباد زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ پتھروں سے اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ قرآن میں قوم سمود کے دور کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا، لیکن ان کو قوم عاد کا جانشین قرار دیتے ہوئے گزشتہ اقوام اور پیغمبروں کی داستان بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ قوم عاد کے بعد کیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ قوم سمود کو عاد الاخرہ کے تعبیر سے بھی یاد کرتے ہیں۔ حضرت صالح کی دعوت کے مقابلے میں قوم سمود 2 یا 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے، اور ان کی اکثریت نے حضرت صالح کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ایک قلیل تعداد نے اس دعوت کو قبول کر کے حضرت صالح پر ایمان لانے کو ہی درست سمجھا۔ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی اسمبلی لکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال قبل حجر کے علاقے میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے اور عبرت پذیری کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حد الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔
जिस पहाड़ी से ऊंटनी निकली उसे फजूतुल नाका कहा जाता है। इस मौजज़े के बावजूद चंद लोगों के अलावा कौम समूद की बड़ी तादाद ईमान नहीं लाई, लेकिन चूंकि उन्होंने इस मौजज़े को अपनी आंखों से देखा था इसलिए वो किसी कदर उस ऊंटनी का एहतराम करते थे। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के फैसले के बाद कुएं से पानी पीने की बारी मुकर्रर कर दी गई। एक दिन ऊंटनी कुएं का पानी पीती और दूसरे दिन कौम समूद के लोग, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऊंटनी को सताना शुरू कर दिया। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन एक दिन कौम समूद के कुछ शरीरों ने ऊंटनी को मार डाला। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, चुनाचे उन्होंने बता दिया कि 3 दिन में अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बावजूद इस जिद्दी कौम ने तौबा करने के बजाय हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अल-नमल आयत नंबर 48 और 49 में जिक्र किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें रास्ते ही में हलाक कर दिया और उनका मंसूबा धरा रह गया। आखिरकार 3 दिन गुजरने के बाद शदीद जलजला आया और आसमान से एक हैबतनाक चीख की आवाज ने उन सबको हलाक कर डाला। इस तरह कौम समूद अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के बावजूद हमेशा के लिए खत्म हो गई और उनकी बस्ती कयामत तक के लोगों के लिए इबरत बन गई। अल्लाह ताला ने इस कौम का जिक्र मुतअद्दिद बार कुरान शरीफ में फरमाया है। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम का नाम नामी भी 9 जगह पर कुरान करीम में आया है। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तफसीली जिक्र सूरह अल-अराफ, सूरह हूद, सूरह शुअरा, सूरह नमल और सूरह अल-कमर में हुआ है। नीज सूरह हिज्र, सूरह फसलत, सूरह ज़ारियात, सूरह नज्म, सूरह हाका और सूरह शम्स में भी उनके मुख्तसर अवाल जिक्र किए गए हैं। चंद आयात का तर्जुमा पेश खिदमत है। उन्होंने यानी हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है। यह अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए निशानी बनकर आई है, इसलिए इसे आजाद छोड़ दो कि वह अल्लाह की जमीन में चरती फिरे और उसे किसी बुराई के इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एक दुख देने वाला अजाब आ पकड़े। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन पर इस तरह बसाया कि तुम उसके हमवार इलाकों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घरों की शक्ल दे देते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो और जमीन में फिसाद मचाते ना फिरो। उनकी कौम के सरदार ने जो बड़ाई के घमंड में थे उन कमजोरों से पूछा जो ईमान ले आए थे कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि सॉलेह अपने रब की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम उस कौम पर पूरा ईमान रखते हैं जो उनके जरिए भेजा गया है। वो मगरूर लोग कहने लगे, जिस पैगाम पर तुम ईमान लाए हो उसके तो हम सब मुनकिर हैं। चुनाचे उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहा, सॉलेह अगर तुम वाकई एक पैगंबर हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी हमें धमकी देते हो। नतीजा यह हुआ कि उन्हें जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घर में औंधे पड़े रह गए। इस मौके पर सॉलेह उनसे मुंह मोड़कर चल दिए और कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर अफसोस कि तुम खैरखाहों को पसंद ही नहीं करते थे। और कौम समूद के पास हमने उनके भाई सॉलेह को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, लिहाजा उससे अपने गुनाहों की माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी। वो कहने लगे, ऐ सॉलेह, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान इस तरह रहे हो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। यानी नबूवत से कबल हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में अजीम मकाम रखते थे। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो? जिस बात की तुम दावत दे रहे हो उसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें इस्तिराब में डाल दिया है। सॉलेह ने कहा, है मेरी कौम, जरा मुझे बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हिदायत पर कायम हूं और उसने मुझे खास अपने पास से एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो कौन है जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले? लिहाजा तुम मेरे फराइज से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे और क्या दे रहे हो? और है मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाती फिरे और उसे बुरे इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब आ पकड़े। फिर हुआ यह कि उन्होंने उसे मार डाला। चुनाचे सॉलेह ने कहा, तुम अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, उसके बाद अजाब आएगा और यह ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सॉलेह को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उन्हें अपनी खास रहमत के जरिए निजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत, बड़े इख्तिदार का मालिक है। और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिंगाड़ ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। महमूद मियां नजमी अपने एक मजमून में इस वाक़े का नक्शा कुछ इस तरह खींचते हैं। शहर हजर की रंगीन, मधोश और पुरतय्युश रात का एक पहर गुजर चुका था।
मौज मस्ती, रक्स सरूद, शराब व कबाब की महफिलें उरूज पर थीं। महल्लात से बाजारों तक, घरों से गली कूचों तक, सहराओं से मैदानों तक गैर अखलाकी हरकत और मकरूह धंधों ने एहतराम आदमियत की धज्जियां बखेर के रख दी थी। मालो दौलत की फरावानी और नेमत खुदाबंदी की कसरत ने शहर के वासियों को अल्लाह से गाफिल कर दिया था और शैतान उनकी हैवानी खसलतों पर काबिज हो चुका था। यह उनका रोजो शब का मामूल था। हुक्मदूली और नाफरमानी उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। हां, अगर कोई नई बात थी तो वह अल्लाह के नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान था कि मेरी कौम, तुम्हारे पास ऐशो इशरत के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद तुम पर सख्त तरीन अजाब आ जाएगा। कौम की अक्सरियत ने अपने नबी की इस बात को भी माजी की तरह हंसी मजाक और तंज इस्तेजा में उड़ा दिया। ताहम उनमें से कुछ ऐसे जरूर थे जो अपने नबी की पेशगोई सुनकर बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए थे, मगर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर थी। वक्त का बेरहम पहिया नहायत तेजी से एक भयानक सुबह की जानिब रवां दवा था। रात भर की मौज मस्ती से थके हारे लोग अपने अपने घर जाने को थे कि अचानक उन्हें एक बड़े जोर की चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा और इस जोरदार सख्त तरीन चीख ने उन सब के कानों के पर्दे फाड़ दिए और उनके दिल पारा पारा हो गए। अभी चिंगाड़ का अजाब खत्म भी ना होने पाया था कि एक शदीद तरीन जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और कौम समूद को अल्लाह ने यूं निस्तो नाबूद कर दिया कि गोया वो वहां कभी आबाद ही ना थे। यूं अल्लाह ताला ने नाफरमान और मुतकब्बर कौम समूद को हमेशा के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के मगरूर, बदआमाल और नाफरमान लोगों को मुतनब्बा फरमा दिया कि ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी तुम्हारे लिए सख्त तरीन अजाब मौजूद है। वादी समूद का लुक़दक सहरा 18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहां हजारों एकड़ रकबे पर वो खूबसूरत तारीखी इमारत हैं जिन्हें कौम समूद ने संगलाख सुर्ख पहाड़ों का सीना चीर कर तराशा था। दूसरी जानिब नर्म मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा के लिए आलीशान महल्लात के खंडरात हैं। 1000 साल कबल मसीह के इन अजीम फनपारों को देखकर आज जदीद दौर के माहिर तामीरात बेअंगुश्त बदंदा रह जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर शहर खमोशा की हजारों वीरान तारीखी इमारतें अपने मकीनों की बदामालियों और नाफरमानियों के सबब अजाब इलाही के जरिए होने वाली तबाही की चश्मदीद गवाह हैं और दौर जदीद की नाफरमान कौमों को ये पैगाम देती नजर आती हैं, देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो। अल्लाह का अजाब और सामाने इबरत, इसका जिक्र कुछ इस तरह से है कि ऊंटनी के कत्ल के बाद जब कोई अजाब नाजिल ना हुआ तो कौम ने खुशी का जश्न मनाते हुए कहा, साले जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उस अजाब को हम पर ले आओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कौम, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है और लो अजाब की अलामात भी सुन लो। कल जुमेरात के रोज तुम सबके चेहरे सख्त जर्द हो जाएंगे, परसों यानी जुमे के रोज तुम सबके चेहरे सख्त सुर्ख हो जाएंगे और हफ्ते को सबके चेहरे स्याह हो जाएंगे और वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इन तीनों पेशगोइयों के सच होने के बावजूद वो कौम चेहरों की रंगत की तब्दीली को मामूली जादुई असरात समझते हुए मामूल के मुताबिक ऐशो इशरत में मसरूफ रही, यहां तक कि चौथे दिन की सुबह ऊपर से सख्त हैबतनाक चिंगाड़ और जमीन के शदीद जलजले ने उन सबको आनन फानन जहन्नुम रसीद कर दिया और अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को आने वाली नस्लों के लिए इबरत कदा बना दिया। कुरान मजीद की सूरह आराफ और सूरह शोरा में है कि उस कौम को अल्लाह ताला ने पानी के चश्मों, खेतों और बागात की दौलत से माला माल किया था। उन्होंने खुले जमीन में आलीशान महलात तामीर किए थे और पहाड़ों में घर तराशे थे, मगर आज इस पूरी वादी में न बाग नजर आता है, न खेत, न कोई चश्मा बहता दिखाई देता है, न किसी महल का नाम निशान बाकी है। बस एक रेगिस्तान सा है जिसके अंदर और उसके इर्द गिर्द फासले से पहाड़ों के तराशे हुए मकानात वीरान पड़े हैं और अपने मकीनों और बनाने वालों की बदनसीबी का मातम कर रहे हैं। इस बस्ती की पूरी फिजा में बस कुरान अजीज की ये आयत यूं लगता है कि बस कर रह गई है। तो ये पढ़े हैं उनके घर वीरान उनके जुल्म की वजह से, बिलाशुबा इसमें बड़ी इबरत है अक्ल वालों के लिए। कौम समूद के बनाए गए दरवाजों के साइज और छतों की ऊंचाई बताती है कि इन लोगों के कदोकामत मौजूदा दौर के लोगों से मुख्तलिफ ना थे। दरवाजों की ऊंचाई 7-8 फीट से ज्यादा ना थी, लिहाजा कुरान करीम ने कौम आद के जिस्मानी डील डॉल का तो खास तौर पर जिक्र किया है, जबकि कौम समूद के बारे में ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और कौम समूद ने वादी अल कुरा में अपने रहने के लिए पहाड़ तराशे थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाए थे ताकि अमन के साथ रहें। ये मकान आज भी इस हालत में हैं जैसे अभी बनाए गए हों। इन लोगों ने कमाल महारत से चट्टानों को काट कर सीढ़ियां बनाई हैं
تو کہیں ایک ہی پہاڑ یا چٹان کو اطراف سے تراش کر اس میں کہیں ایک منزلہ اور کہیں 2 منزلہ مکانات یا کمرے بنائے ہیں اور کہیں لمبے سلسلے مکانات کے تعمیر کیے ہیں۔ قرآن کریم میں انہی مکانات کا ذکر ہے، لیکن افسوس کہ جب برے اعمال کی شامت آئی تو نافرمانی کرنے والے بڑے اور ان کے پیچھے چلنے والے چھوٹے سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ دمشق یعنی شام کا ایک شاعر الصلال صفدی کسی زمانے میں جب مدینہ طیبہ اور حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تو شعر العلا کے بارے میں بہت ہی اچھے اشعار کہے، وہ بھی اب پہاڑوں کو دیکھ کر اظہار تعجب کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کہتا ہے، جو شخص بھی العلا کے پہاڑوں سے گزرے گا اور ان کی شکلیں دیکھے گا اسے عجیب و غریب مناظر ملیں گے۔ غیبی ہاتھ اور تیز ہواؤں نے ان پہاڑوں کو ایسا ڈھایا ہے کہ ان کی صورتیں حیرت ناک بن گئی ہیں۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر پاش پاش کر دیا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ مشرق میں خیبر جاتے ہوئے تقریباً 50 میل تک اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں 30 سے 40 میل اندر تک چلا جاتا ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ کوئی 300-400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک عظیم زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سنگ تراشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے تعمیر شدہ پتھروں کے شہر کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، لیکن اب یہ دلچسپ فن تعمیر صرف عذاب کی جگہ ہے، تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر میں سمود کی برباد شدہ بستیوں پر گزرے تو صحابہ نے ان کنوؤں سے پانی بھرنا شروع کر دیا جن سے سمود سیراب ہوتے تھے، اور آٹا گوندھ کر ہانڈیاں چڑھا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈیوں کو الٹنے کا حکم دیا اور گندھے ہوئے آٹے کو اونٹوں کے سامنے ڈلوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اس کی بستیوں میں قیام نہ کریں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزریں، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سمود کی بستیوں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز کر دیا اور لوگوں کو ہدایت کی کہ یہاں روتے ہوئے داخل ہوں۔ اسے معلوم ہوا کہ جس قوم کی بستیوں پر عذاب خداوندی نازل ہوتا ہے وہاں اس کے اثرات بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جہاں خدا کے مقدس بندوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، ان کی آبادیوں اور مقامات سکونت پر ان کے برکات و ثمرات باقی رہتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح وہاں ٹھہرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے، ویسے ہی یہاں منافع اور فوائد کی توقع کرنی چاہیے۔ عذاب والی جگہوں سے گزر ہو تو تفریح کے بجائے استغفار کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حجر کی بستی کے پاس آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجزے نہ طلب کرو، دیکھو قوم صالح نے معجزہ طلب کیا جو ظاہر ہوا، یعنی اونٹنی جو اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن یہ سب اس کا دودھ پیتے تھے۔ اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر ان پر ایک چیخ آئی اور یہ جتنے بھی تھے سب کے سب ڈھیر ہو گئے، بجز اس ایک شخص کے جو حرم شریف میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا ابو رغال۔ یہ بھی جب حد حرم سے باہر آیا تو اسے بھی وہی عذاب ہوا۔ روایات میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو تمہارے پاس دلیل الہی آ چکی جس میں میری سچائی ظاہر ہے۔ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا کہ ایک سنگلاخ چٹان جو ان کی بستی کے کنارے پڑی تھی جس کا نام کاتبہ تھا، اس سے آپ ایک اونٹنی نکالیں جو گابھن ہو، یعنی دودھ دینے والی اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم ایمان قبول کر لو گے؟ انہوں نے پختہ وعدے کیے اور مضبوط عہد و پیما کیے۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، دعا کی، ان سب کے دیکھتے ہی چٹان نے ہلنا شروع کیا اور چٹک گئی۔ اس کے پیچھے سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی، اسے دیکھتے ہی ان کے سردار جندہ بن عمرو نے تو اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ باقی جو اور سردار تھے وہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے، مگر زواب بن عمرو بن لبید نے اور حباب نے جو بتوں کا مجاور تھا اور رباب بن سامر بن جلحس وغیرہ نے انہیں روک دیا۔ جندہ کا بھتیجا شہاب نامی یہ سمودیوں کا بڑا عالم فاضل اور شریف شخص تھا، اس نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کر لیا۔ انہی بغبغتوں نے اسے بھی روکا، جس پر ایک مومن سمودی ماوش بن اسما نے کہا کہ آل عمرو نے شہاب کو دین حق کی دعوت دی، قریب تھا کہ وہ مشرف با اسلام ہو جائے، اور اگر ہو جاتا تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی، مگر بدبختوں نے اسے روک دیا اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر لگا دیا۔
उस हामला ऊंटनी को उस वक्त बच्चा हुआ। एक मुद्दत तक दोनों उनमें रहे। एक दिन ऊंटनी उनका पानी पीती। उस दिन इस कदर दूध देती कि ये लोग अपने सब बर्तन भर लेते। दूसरे दिन समुदियों के दूसरे जानवर पी लेते। ये ऊंटनी समुदियों की बस्ती हिजर के इर्द गिर्द चरती चुगती थी। एक राह जाती, दूसरी राह आती। ये बहुत ही मोटी ताजी और हैबत वाली ऊंटनी थी। जिस राह से गुजरती सब जानवर इधर उधर हो जाते। कुछ जमाना गुजरने के बाद इन ओबाशों ने इरादा किया कि इसको मार डालें ताकि हर दिन उनके जानवर बराबर पानी पी सकें। उन ओबाशों के इरादों पर सब ने इत्तेफाक किया, यहां तक कि औरतों और बच्चों ने भी उनकी हां में हां मिलाई और उन्हें शह दी कि हां, इस ऊंटनी को मार डालो। चुनांचे कुरान करीम में है कि हमने समुदियों को ऊंटनी दी जो उनके लिए पूरी समझबूझ की चीज थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। यहां भी फरमाया कि उन्होंने इस ऊंटनी को मार डाला। बस इस फेल की असनाद सारे ही कबीले की तरफ है, जिससे साफ जाहिर है कि छोटे बड़े सब इस अम्र पर मुत्तफिक थे। कुरान करीम में मजीद इरशाद होता है, शहर में 9 शख्स थे जिनमें इस्लाह का मादा ही ना था, सरासर फसादी ही थे। चूंकि ये लोग कौम के सरदार थे, उनके कहने सुनने से तमाम कफ्फार भी इस पर राजी हो गए और ऊंटनी के वापस आने के रास्ते में उनमें से 2 शरीर अपनी अपनी कमीन गाहों में बैठ गए। जब ऊंटनी निकली तो पहले मुसद्दा नामी शख्स ने उसे तीर मारा जो उसकी रान की हड्डी में पैवस्त हो गया। फिर कदार नामी शख्स ने उसके दोनों पिछले पांव काट दिए। ऊंटनी चकराकर गिरी और एक आवाज निकाली जिससे उसका बच्चा होशियार हो गया और उस रास्ते को छोड़कर पहाड़ी पर चला गया। यहां कदार ने ऊंटनी का गला काट दिया और वो मर गई। उसका बच्चा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर 3 मरतबा बिलबिलाया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसने अल्लाह के सामने अपनी मां के कत्ल की फरियाद की, फिर जिस चट्टान से निकला था उसी में समा गया। यह रिवायत भी है कि उसे भी उसकी मां के साथ ही ज़िबह कर दिया गया। वल्लाह आलम बिस्सवाब। सौलेह अलैहिस्सलाम को जब यह खबर पहुंची तो आप घबराए हुए मौके पर पहुंचे। देखा कि ऊंटनी बेजान पड़ी है। आपकी आंखों से आंसू निकल आए और फरमाया, बस अब 3 दिन में तुम लोग हलाक कर दिए जाओगे। हुआ भी यही। बुध के दिन उन लोगों ने ऊंटनी को कत्ल किया था और चूंकि कोई अजाब ना आया इसलिए इतरा गए और उन मुफसिदों ने इरादा कर लिया कि आज शाम को सौलेह अलैहिस्सलाम को भी मार डालो। अगर वाकई हम हलाक होने वाले हैं तो फिर ये क्यों बचा रहे? अगर हम पर अजाब नहीं आता तो भी आओ रोज रोज के झंझट से पाक हो जाएं। चुनांचे कुरान करीम का बयान है कि उन लोगों ने मिलकर यह मशवरा किया और फिर कसमें खा खा कर इकरार किया कि रात को साले के घर पर छापा मारो और उसे और उसके घराने को तहे तैख करो और साफ इनकार कर दो कि हमें क्या खबर कि किसने मारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके इस मकर के मुकाबिल हमने भी मकर किया और ये हमारे मकर से बिल्कुल बेखबर रहे। अब अंजाम देख लो कि क्या हुआ। रात को ये अपनी बदनीयती से सौलेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। आपका घर पहाड़ की बुलंदी पर था। अभी ये ऊपर चढ़ ही रहे थे जो ऊपर से एक चट्टान पत्थर की तरह लुढ़कती हुई आई और सबको ही पीस डाला। उनका तो यह हश्र हुआ। उधर जुमेरात के दिन तमाम समुदियों के चेहरे जर्द पड़ गए। जुमे के दिन उनके चेहरे आग जैसे सुर्ख हो गए और हफ्ते के दिन जो मोहलत का आखिरी दिन था उनके मुंह स्याह हो गए। 3 दिन जब गुजर गए तो चौथा दिन इतवार सुबह ही सुबह सूरज के रोशन होते ही ऊपर आसमान से सख्त कड़ाका हुआ जिसकी हौलनाक दहशत अंगेज चिंगाड़ ने उनके कलेजे फाड़ दिए। साथ ही नीचे से जबरदस्त जलजला आया। एक ही साथ में एक साथ ही उन सब का ढेर हो गया। मुर्दों से मकानात, बाजार, गली कूचे भर गए। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, अव्वल से आखिर तक सारे के सारे तबाह हो गए। तो तमाम हवाला जात और मकातिब फिक्र की राय से वाज़ेह होता है कि कौम समूद ने हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और अल्लाह की वहदानियत के बजाय अपनी ख्वाहिशात की इबादत की। इसीलिए यह कौम तबाह हुई और उनका इल्म और सलाहियतें उनके काम ना आ सके। इसीलिए पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको इस वाक़े से इबरत हासिल करने की हिदायत की है। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए और सिर्फ हमारी इबादतों और हमारे नेक आमाल को हमारी पहचान बनाए। आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको
बर वक्त मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हमसे पूछ सकते हैं। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।